तो मिडसम नहीं होगा डीसीएन का, था कि नहीं नहीं था? सर, नहीं सर। ठीक है, चलो। So, a very good morning to all of you. We are dealing with our second unit for the subject probability and statistics. In second unit, we are studying some spatial probability distribution. And in the last lecture, in the last lab, means in the previous week, we were discussing about one of the most important and most useful probability distribution, which is normal probability distribution. Now, as we know that normal distribution is associated with continuous random variable. When a random variable is gonna take a value from one of the interval, then we are having 2-3 different distributions like normal, then after exponential, then after hypogeometric, like that. So out of that, firstly we are dealing with normal distribution. So what is the outline? Random variable, उसके दो कैटेगरी होते हैं, that is discrete, continuous. We are in the continuous part now. Continuous random variable, उसके लिए जो probability distribution है उसमें से पहला, that is normal probability distribution. That is what we are dealing with. Okay, and in the previous session I had already delivered the theoretical part for the normal distribution, how to deal with what is the probability function, or you can say probability density function for the normal distribution. This is a function which is known as a probability density function, where f of x is having one of the scariate form, that is f of x is 1 upon sigma root 2 pi e to the power minus half x minus mu divided by sigma the whole square, where mu is mean, sigma is my standard deviation, and range for that particular continuous random variable x will be minus infinite to infinite. Similarly, for the mean, if x gonna take value between any of them, minus infinite to infinite, तो mu भी वही होगा. And standard deviation is always positive. Why? Because we are taking standard deviation as a square root of variance, positive square root of variance. So standard deviation always greater than 0 होगा. ठीक है? So this is a probability density function. And if we are dealing with a continuous random variable, and if we are looking for probability in one of the interval, then we are having that understanding that we need to deal with the integration. We need to integrate this particular function in the given interval. Now, it is not that much easy to integrate this function in one of the interval. Suppose between 2 to 10. If I need to integrate this function between 2 to 10, then it's not that much easy. It's quite convenient, time consuming, is it? So it's not like that case. It's an impossible task, but it's time consuming process. So what we had done, we had find one of the alternate way. This is my continuous random variable x. This is the stuff related to continuous random variable x, or I can say a normal variable x, normal variate x. Now, to deal with normal variate x is not that much easy. So we had defined one of the other standard normal variate z. हमने कोई एक अलग से standard normal variate z define किया हुआ है, जो which will help us to minimize this particular process quite easily. Here it is. We had identified z as a x minus mu divided by sigma, where x is my continuous, or I can say a normal variate. Mu is a mean of that x, and sigma is the standard deviation of x. If I'm gonna use this particular transformation formula, and using that, if I'm gonna transform x into z, then the whole distribution will be converted into z, और वो पूरा z में convert होगा. अगर वो z में convert हो रहा है, तो that particular z is also a normal variate. X भी normal variate है, z भी normal variate है, and for z we are giving a new name, that is a standard normal variate, or the distribution related to z will be known as a standard normal distribution. X के लिए जो distribution उसको बोलेंगे normal distribution,
z के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. So let's see some of the parameter of z, जैसे कि हमने पहले ही बात कर चुके that expected value, that means the mean for the z will be always 0, variance for the z will be always 1, that means the standard deviation is 1. So z is one of the standard normal distribution कि जिसका mean always 0 रहता है, जिसका standard deviation always 1 रहता है. Both these parameters are fixed, ये हर बार यही रहेगा, वो कभी चेंज होगा ही नहीं. आप कोई भी x लेके आओ, उसको z में ट्रांसफर करो, उसका मीन जो है वो 0 ही रहेगा, उसका standard deviation 1 ही रहेगा. So both these parameters are fixed for any of the normal distribution. So using that, in terms of that, this standard normal distribution is quite useful for all of us. ये standard normal distribution हमको बहुत useful होने वाला है, because initially we are looking for probability for one of the normal variate in one of the interval x1 x2, let's say x1 x2. Then what we will be doing, instead of dealing with this, we will be dealing with probability that z1 is less than equals to z is less than equals to z2. So this is what we are going to do. x को पूरा कन्वर्ट करने वाला है z में, z की probability फाइंड करेंगे, and as both these are same, so we will finally able to get this particular interval. Okay, so पूरी बात ये है कि हम नॉर्मल वेरिएट x को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z में कन्वर्ट करेंगे. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी कहो, कोई भी नॉर्मल कहो, पूरा पॉजिटिव साइड में, पूरा नेगेटिव साइड में, आधा बीच में, तो वो हर बार ट्रांसफॉर्म होगा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में, जिसका पिक ऑलवेज एट 0 होगा. द मीन इज 0, दिस इज दिस मीन, एंड देन वी विल बी identifying, then we will be going to find one of the desired interval, probability for one of the desired interval. So for that we need some of the different cases जो कि मैंने पिछली स्लाइड में, पिछले लेक्चर्स में बताए थे, वो फिर से हम डिस्कस करेंगे अभी. बट दिस इज व्हाट a tool is. We're gonna use this normal table. Using this particular normal table, we will able to get any of the probability for normal variate x. तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी इंटरवल ले लीजिए आप, वो इंटरवल में probability फाइंड करने के लिए this table will be enough. This table will be more than enough. Okay. Now what is this? इस टेबल का कंटेंट का क्या है, क्या दिया हुआ है इसमें? Let me explain once. Let me pick my pen from the option. Yes, here is. Good. Now observe. Z. Row wise जो caption है, that is 3 up to 3.0, is it? And the column wise it is 0.00 से लेके 0.09, is it? That means what? Maximum I can find probability that z is equals to z की जो रेंज है वो मैं अगर 3.09 तक लूँ, तब तक मैं probability find कर पाऊंगा using this particular table. Okay. One more thing, how to read this table, how to deal with this table, is it? Let me make a thing clear. Probability that z is equals to 1.35. Probability that z is less than 1.35, and probability that z is less than equals to 1.35. ये तीन probability चलिए हम फाइंड करते हैं. What is this? First one is probability that z is equals to 1.35. Second, probability that z is less than equals to 1.35, and third, sorry, second is z is less than, strictly less than 1.35, and third is probability that z is less than equals to 1.35. First of all, let me ask you, am I properly audible, clear? Mansi તારી એપ્સન કેટલા બધા CR બનાવી દીધા હતા અમે 2 વીકમાં. હા સર. Am I properly audible to all of you? બધા સાથે છીએ? Good. હવે આ ત્રણ અનલોગ ઇનઇક્વાલિટી માં લખી છે, એકમાં ઇક્વલ ટુ, એકમાં લેસ ધેન, એકમાં લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ. Is it? My first question towards you, all of you, anyone can ask. मैं
जब when we are using that, we all know that how to identify 1.35, वो हमको पता है 1.3 यहाँ से पिक करना है, 0.05 we will pick from here, or we will take its intersection, and that intersection is 0.4115, is it? Now my question is this, ये आंसर किसका है? पहले का है, सेकंड का है, या तो फिर थर्ड का है, या तो फिर तीनों का है? Who will reply? This particular 0. फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड कौन बोला? तुषार 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 सेठिया बोला या सीना? तुषार सेठिया। सेठिया सेठिया। हाँ तुषार बोल, ये फर्स्ट का आंसर है। हाँ, और थर्ड First का का- भी होगा ना, लेस देन इक्वल टू भी तो आ रहा है उसमें। भाई फर्स्ट का है तो थर्ड का नहीं हो सकता। 10 फर्स्ट का ही होगा सर, क्योंकि नीचे में दिया लेस देन इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी तो इक्वल टू का भी निकलने से इसमें वैलिड मानेगा ना, p इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.35। ओके अगर वो इक्वल टू हो रहा है तो उसमें दिया हुआ है अगर, तो फिर तो वही होगा ना, इक्वल टू आने से भी वो एक्सेप्ट करेगा वैल्यू। ठीक है तुषार, बी हियर, यहीं पे रहना फोकस के साथ। तेरी इंफॉर्मेशन, तेरे दिमाग में जो एक इंफॉर्मेशन है वो गलत है, उसको मैं क्लियर करूंगा। सो बी हियर प्लीज, ओके, आई रिक्वेस्ट यू। म्यूट कर दे अपने आप को, यहीं पे रहना, मैं तुझसे अभी बात करूंगा। एनीवन एल्स? 0.4115। सर फर्स्ट का आंसर होगा। विधि विधि हाँ, विधि और विधि second और विधि third- विधि विधि Yes, अगर sir. मैं मुझे यहाँ पे अगर हम क्लास में होते ना, अभी लाइव होते ना, तो मैं तुझे बेंच के ऊपर खड़ा करता कि खड़ी हो जा बेंच के ऊपर, या तो फिर मुर्गा बना देता साइड में, सर पर कि कोने में जाओ और मुर्गा बन। सकता है ना। मैंने तेरे ऑप्शन लास्ट में रखा था कि सबसे अगर किसी का आंसर गलत हो गया ना तो विधि को पूछूंगा। तू भी यहाँ पे खड़ी रहे, हाँ, जहाँ पे लेक्चर अटेंड करिए ना, खड़ी हो जा थोड़ी देर के लिए, बैठना मत, ये तेरी सजा है अभी। विधि सेइंग फर्स्ट, तुषार सेइंग फर्स्ट थर्ड। चलो और कोई मैंने फर्स्ट और थर्ड नहीं बोला, मैंने फर्स्ट बोला सिर्फ। मैंने ये बोला फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड थर्ड में सेम होगा। ओके, विधि बोल रही है फर्स्ट। विधि अब तो तू खड़ी, अभी तक मैंने तुझे खड़ा रखा था, अब तू मुर्गा बन जा। अब आंसर और गलत हो गया, अब तू मुर्गा बन जा थोड़ी देर के लिए, म्यूट कर दे। और बताओ, और कोई बताओ। सर एक्सप्लेन कर दीजिए ना इतना में। रुक जा। आदित्य, अनुज, विपिन, देवांश, दीपेन, गिरीश, मानसी को नहीं पता होगा क्योंकि निकिता कक्कड़, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर। यस बेटा, बोल बेटा, केनो जवाब छे फर्स्ट सेकंड थर्ड नो? माय फर्स्ट स्क्रीन का इज तो नहीं है। फर्स्ट का तो नहीं है, हाँ ये तो पता चल गया। हाँ। ठीक है, रुक जाओ, चलो सभी म्यूट कर दो। दिस इज द आंसर फॉर सेकंड और थर्ड। ये या तो सेकंड का आंसर हो सकता है या तो थर्ड का, दोनों का भी हो सकता है। व्हाई? देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, देखो what was the instruction for the normal table. Normal table can gives us the value between one of the interval. Normal table जो है वो हमको कोई एक इंटरवल की वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे जो भी जितने भी रीडिंग्स है ना, that is for one of the interval. That interval, it is always starting from 0 is less than z is less than one of the value. यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं दिस इज 2.35, तो हमको क्या करना है, 2.3 फ्रॉम हियर, 0.5 फ्रॉम हियर, उसका सर बहुत intersection इसमें है। समझ गया। So this is not this, all these values are for one of the interval, one of the region. Okay, this is the only reason कि इस टेबल के बाजू में ये स्केच है आपके पास। देखो इसका मतलब क्या हुआ है, जब मैं कोई एक देखो, when I'm finding probability that कोई एक probability में फाइंड कर रहा हूँ, देख लीजिए 2.4, let me just all these things first। देखिए ये समझना बहुत ही जरूरी है, कहीं पे भी छोटी सी भी गलती है ये नहीं चलेगा, बिकॉज अगर ये नहीं समझ में आ रहा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं देख रहा हूँ, देख 1.902 ये जो वैल्यू है, दिस इज 1.902, इज इट? तो 1.902 की वैल्यू है, दैट इज 0.4726।
तो ये 1 पॉइंट z इज नॉट z इक्वल्स टू 1.92 नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है z की एग्जैक्ट वैल्यू 1.92 हो तब वो है 0.4729। नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.92। तो ये जो पूरा इंटरवल है ना 0 से लेके 1.92, दैट इंटरवल में z आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4726। Is it? So all सर this, दैट मीन्स सर 0.4726 आउटर बाउंड्री हो गया ना उसका। yes, 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 yes. अब ओके देख, सर। मैं एक स्केच बना दूं, रुक जा। Let me pick my pen once again. So तो नॉर्मल टेबल जो भी है, नॉर्मल कर्व जो भी है बेटा यहाँ पे, suppose like this, and we all know that this normal curve is symmetric about 0, is it? Z equals to 0 के लिए ये सिमेट्रिक है, मानी कि जो पार्ट इस तरफ है राइट हैंड साइड में जो भी रीजन है उतना ही रीजन लेफ्ट हैंड साइड में है, बिकॉज दिस कर्व इज टोटली सिमेट्रिक अबाउट z equals to 0। एग्री विथ मी ऑल ऑफ यू? सही बता रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है सभी को? दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट z equals to 0। मैं काफी सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सो बी रेडी टू रिप्लाई ऑन द कमेंट बॉक्स क्विकली। मुझे रिप्लाई चाहिए ही चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा। ये कर्व सिमेट्रिक है z equals to 0 के, हाँ या ना? This curve is symmetric. Yes or no? Reply on the chat box. Yes, it is a symmetric curve. इसका मतलब क्या हुआ, जो भी माइनस इनफाइनाइट से 0 का जो भी रीजन है उसका जो भी एरिया होगा वही एरिया 0 से इनफाइनाइट का होगा। Is it? So this curve is totally symmetric। अब हम जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम इस पूरे टेबल में जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के लिए है, इसी के लिए टेबल है, नेगेटिव पार्ट की कोई बात ही नहीं है हमारे पास। सो देखिए, फॉर दिस पोर्शन ओनली वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर नॉर्मल टेबल। नॉर्मल टेबल सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के लिए ही है, ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए और एक दो बात, हमको पता है कि -1 से 1 में -2 2 and -3 3, this three are one of the standard interval। -3 से 3 तक 99.74% डेटा कवर हो रहे, ऐसा मैंने बताया था प्रॉपर्टी में, याद कीजिए। -3 से 3 तक 99.74% डेटा will be there in the interval -3 to 3। -2 to 2 95 point something, -1 to 1 68.24 28% something, is it? But ये important है, -3 से 3 तक almost 99.74, that means almost all the data are here। so ये कर्व जब x एक्सिस को टच करने वाला है ना, यहाँ पे सपोज कि ये कभी टच तो नहीं करेगा, ये पक्की बात है, पर जब वो x एक्सिस के बहुत पास पहुंच रहा है, that point is 3, z equals to 3, always take care। और इस तरफ पे वो पॉइंट है -3, this point is z equals to -3। ओके, केयर करनी है ये बात की। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे this z equals to 3, ये गलत होगा। जब वो x एक्सिस के बहुत ही पास है तभी वो पॉइंट आपको लिखना है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज z equals to 3। ये स्केच हम हर बार बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन में बनाएंगे, तो ये सारी बातें याद होना, आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है। सो z equals to 3 will be here। Now how we will deal with the normal table? If I wish to find area between z equals to 0 to z equals to 1, z equals to 0 से z1 तक कितना एरिया है, सपोज दिस z equals to 1, अगर ये मुझे फाइंड करना है, then this normal table will help me। 0 is less than z is less than 1, वो क्या होगा, तो मुझे क्या करना है, 1 के लिए फाइंड करना है, that is 1.0, exactly 1.0 होगा 0.3413। so इतना जो रीजन है that is 0.3413। समझ में आ रही बात? वो क्या है, एरिया बिटवीन z equals to 0 to z equals to 1, ठीक है। इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ z equals to 1, ये z equals to 1 की वैल्यू नहीं है, ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू है। तो जो मुझे चाहिए, अगर आई एम फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर, अभी जो मैंने फाइंड किया था 0.4115, दैट व्हाट वाज दैट 1.35 मानी कि दिस इज, तो ये किसके लिए फिगर है, ये डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट डिजिट रिप्रेजेंट्स दैट z इज लेस देन 1.35। लेस देन 1.35 का मतलब क्या, वो 0 से 1.35 के बीच में,
वहां पे मुझे कुछ ऐड करना चाहिए, 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.35, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वो दे रहा है, ना कि z इक्वल्स टू 1.35 की। ये बिल्कुल गलत है। z इक्वल्स टू 1.35 वो होगा 0। this will be surprise for you. What I'm saying, probability that z equals to 1.35 वो होगा 0। क्यों, मैं बताऊंगा। probability that even probability that z equals to सर any of क्योंकि them, सर हम कोई लोग भी वो एक, जीरो वाला लाइन को नॉर्मल ले रहा है इसलिए वो जीरो होगा ना, वहां से शुरू कर रहा है z इक्वल टू काइंड ऑफ। नहीं नहीं बताता हूं, मुझे रुक जैसे क्या, कोई भी एक नंबर बोल, 0 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल। 2.35 2.35 या तो 1.78, कोई भी अगर फिक्स नंबर ले लेना z का, z को कोई कहीं पे तू फिक्स कर दे, एग्जैक्टली 1.78, एग्जैक्टली 2.39, एग्जैक्टली 2.98, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी। वो हम नॉर्मल टेबल में देखेंगे ही नहीं, जाने दो। नॉर्मल टेबल सिर्फ दे रहा है इंटरवल की वैल्यू, ऐसा इंटरवल की वैल्यू जिसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट 0 है एंड देन द नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए 3 तक, वो पॉजिटिव नंबर ही होगा 3 तक। अब मैं आपको जनरल फॉर्म में लिख के बताता हूं। देखिए नॉर्मल टेबल जो है वो क्या है भाई, नॉर्मल टेबल गिव्स यू द वैल्यू जहां पे प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट नंबर ये 0 ही होगा ऑलवेज, दिस इज फिक्स्ड, लेस देन, यहाँ पे z आएगा क्योंकि हम z की बात कर रहे हैं, एंड हियर वन ऑफ द नंबर विल बी हियर, यहाँ पे कोई एक नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा और वो लेस देन 3 ही होगा। इज इट, यहाँ पे नंबर आना चाहिए पॉजिटिव नंबर और लेस देन 3। अगर ऐसा है आपके पास तभी ये नॉर्मल टेबल आपको यूज करना है, वरना नहीं करना है, वरना नहीं करना है। सर क्या बात कर रहे हो, मानी कि अगर ऐसा है 1 इज लेस देन z इज लेस देन 2, तो क्या मैं नॉर्मल टेबल नहीं कर सकता? कर सकता है, पर डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको हम मॉडिफाई करेंगे। ये नॉर्मल टेबल तभी आपके लिए यूजफुल है इफ द फर्स्ट जहां से वो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वो 0 होना चाहिए और ये जो एंड पॉइंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 3 से थोड़ा बड़ा है चलेगा, पर कम से कम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, सॉरी। देन एंड देन दिस नॉर्मल टेबल विल हेल्प यू। अगर तुझे चाहिए 1 is less than z is less than 2 और तुझे चाहिए कि 2 is less than z is less than equals to 2.5, like that, any of such kind of inequality, तो ये नॉर्मल टेबल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई करेंगे हम, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को मॉडिफाई करेंगे, उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, उस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लेके आएंगे जिसका एक एंड पॉइंट 0 है और दूसरा एंड पॉइंट पॉजिटिव है। जब ये फॉर्म आएगा ना तभी जाके हम नॉर्मल टेबल यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चलो, are we clear with this thing? How many of you are clear with this? Let me know, please let me know. अभी जो भी बात हुई उसमें कितने लोग क्लियर है, प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आ रहा है बता देना, समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में डालो कमेंट, नहीं समझ में आ रहा है तो भी डालो, कोई बात नहीं, प्लीज। आई विल रिपीट एज मेनी टाइम एज यू वांट, जितनी भी टाइम अगर रिवाइज करना पड़ा मैं करूंगा, पर बताओ मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो भी बंदा यहाँ पे है हर किसी को रिप्लाई करना है ऑन द चैट बॉक्स क्विकली। अनुज, मानसी, निकिता, रिद्धि, तुषार, देवांश, शेखिया, लतिक, विद्धि, मानव, यशांक. Okay, good. Almost all of you are getting this thing. Good, that's good. Now, so this is the way we guys gonna deal with the normal table. उसके लिए हमने 3-4 अलग अलग केसेस डिस्कस किए थे हमने लास्ट लैब में। किसी कोई एक बंदे की डिमांड के ऊपर मैंने वो डिफरेंट 3-4 केसेस भी डिस्कस किए थे। इज इट? नाउ व्हाट वी विल डू, let's deal with some of the official examples. और जिन लोगों को भी डाउट है अभी कि सर ये टेबल में थोड़ा कुछ डाउट है, then the things will be clear within next 15 to 20 minutes, because ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे शुरू हो रहा है। वो एग्जाम्पल्स अब मैं ऑफिशियली ले रहा हूँ, अब तक तो जो लिए थे वो ऐसे ही है, वही आपको समझाने के लिए लिए थे, बट नाउ वी आर गोना डिस्कस सम ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जाने से पहले, एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक और बात, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किए। एग्जाम्पल्स हमने डिवाइड किए z के लिए और x के लिए।
Now, what is Z? What is X? X is my normal variate. X is normal variate. And what is Z? Z is standard normal variate. Yes, perfect. Z is standard normal variate. अब हमको पता है कि हमारे सिलेबस में है X. We need to deal with the normal distribution. मानी कि X के साथ काम करना है. This is what we are supposed to learn. But this is not that much easy. इसके लिए probability find करनी है तो वो बड़ा सा इंटीग्रेशन है जो नहीं करना है. So that is the reason we are converting that particular into Z. So X जो है उसको indirectly हम Z में ही convert करेंगे और solve तो Z से ही करेंगे. Is it? So यहाँ पे examples दो तरीके के होंगे X Z. पहले हम start कर रहे हैं Z से. Z के लिए 2-3 एग्जाम्पल में दे रहा हूं. Once we are comfortable with Z, then we will switch over to X. फिर हम नॉर्मल वेरिएट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल वेरिएट का कोई भी क्वेश्चन है उसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट तो आएगा ही आएगा. हर एक क्वेश्चन अब से सिलेबस, अब से आगे इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इसी से होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से ही सॉल्व होगा. कहीं पे हम नहीं करने वाले इंटीग्रेशन, कहीं पे हम कोई भी और फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, बस ये नॉर्मल टेबल से ही हम अपना आंसर प्रिपेयर करेंगे. So each and every question will be converted into standard normal variate. So पहले चलिए standard normal variate के लिए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम जाएंगे core content यानी कि normal variate. ठीक है. So let me move ahead. Very good. Uses of normal distribution I'm not gonna discuss. जाने दो, वो बाद में बात करेंगे. Right now flow के साथ जाते हैं. Examples of normal variate. Now read the caption. Examples of normal variate. Is it? No, it is standard normal variate. Example of standard normal variate. Standard normal variate मानी कि Z. So we are supposed to deal with the examples of Z. Let me show. It is quite basic example. What is the probability that a standard normal variate Z will be greater than 1.09? Will be greater than 1.09 first. Less than or equals to minus 1.65. Second question. Lying between minus 1 and 1.96, and lying between 1.25 and 2.75. So here we're gonna deal with the 4 different cases, 4 different examples related to that. Chaliye, let me denote the first one. What is first? First. We are supposed to find probability that my standard normal variate Z is greater than 1.09. So we are supposed to find that Z is greater than 1.09. ये क्या है, ये इसको फाइंड करना है. चलिए कैसे करेंगे, रुक जाओ. Any of the question for the normal distribution, we will always go for the sketch, and it will be always a rough sketch. So don't worry. आपको कोई स्केल लेके नहीं बैठना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है. यू नीड टू ड्रॉ अ बेल शेप कर्व एंड इन द सेंटर यू विल रिप्रेजेंट दिस इज Z इक्वल्स टू 0. हम ऑलवेज जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट करेंगे जिसका मीन, जिसका सेंटर 0 है. ये जो एंड है जहां पे वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब है, दैट इज +3. ये जो एंड है दैट इज -3. सो दिस आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड नोटेशन. इतना हर बार यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. अब व्हाट वी आर फाइंडिंग, Z is greater than 1.09. पहले तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, 1.09 पॉजिटिव. Is it? If this distance is 3, 0 to 3, अगर ये डिस्टेंस है वो 3 है, तो you can easily approximate 1.09. आपको पता है कि 1.09 कहाँ पे हम लिख सकते हैं, कहाँ पे वो पॉइंट लोकेट कर सकते हैं. Is it? It will be totally wrong अगर कोई यहाँ पे लिखे कि this is 1.09. गलत है, बिल्कुल गलत है. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. वैसे ही कोई अगर यहाँ पे लिखे कि दिस इज 1.09 तो वो भी गलत है, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज 3. और मैंने बोला कि ये स्केच जो है वो रफ ड्रॉ करना है. आपको स्केल लेके प्रॉपर स्केल का यूज करके ड्रॉ नहीं करेंगे चलेगा, इट्स टोटली फाइन. बट वो दिखना भी तो चाहिए ना. अगर ये डिस्टेंस 3 है तो 1.09 विल बी समवेयर अराउंड हियर. इज इट? वो अप्रोक्सीमेट होना चाहिए कि भाई ठीक है चलो. सो दिस इज 1.09. लेट मी अज्यूम दिस इज 1.09. ये जो Z की वैल्यू है, दिस Z इज 1.09. Wait, oops, sorry. Yes, this is 1.09. Z equals to 1.09. Is it? Now, what we are finding? देखिए हमको क्या चाहिए? We need a probability that Z is greater than 1.09. Greater than 1.09 मानी कि 1.09 नहीं, उससे बड़ी वैल्यू. मानी कि ये पूरा पोर्शन जहां पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए
येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, all this portion will have the value 1 greater than 1.09. Yes or no? Agree with me or not? Yes or no? Hello? Yes, good. So देखिए अपर लिमिट नहीं है, z की वैल्यू 1.09 से बड़ी, अब कितनी बड़ी, कितनी बड़ी भाई, वो तो बोल रहे हैं कि z की वैल्यू 1.09 से बड़ी, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी मानी कि इनफाइनाइट तक भाई, अप टू इनफाइनाइट, this goes to infinite. We need to identify the area of this region. ये हमको फाइंड करना है. अब क्या करें, what we can do? हमारे पास जो नॉर्मल टेबल है वो तो क्या दे रहा है हमको, सिर्फ वो एक एंड पॉइंट अगर 0 हो और वहां से कोई एक पॉजिटिव वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी देता है. फिर हमको क्या पता है कि भाई दिस होल बेल शेप कर्व इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, कि इस तरफ का अगर एरिया आप निकालो 0 से नेगेटिव इनफाइनाइट तक वो एरिया हाफ होगा, यहाँ तक अगर आप एरिया फाइंड करो तो वो एरिया भी हाफ है, 0.5 इतना पता है हमको. तो अब हाउ वी कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी यूजिंग द नॉर्मल टेबल. कौन हेल्प करेगा मुझे, ये मैंने सिखाया था लास्ट लैब में, मैंने सिखाया हुआ ये. चलिए, who will help me? Sir, Who's this? Niti. વિધિ પારીખ. યસ વિધિ, બોલ. સાચો પડી ગયો ને તો તને બેસાડી દઈશ. તું ઊભી છો ને હજી? ઊભી છો ને? हाँ sir. हाँ sir. પાક્કું ને? हाँ sir. હા, જો તારો આન્સર સાચો પડ્યો તો તને બેસાડી દેશું. ચલ બોલ. पहले 0 to 1.09 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. रुक जा. फिर उस- हाँ जो रुक जा. 0 से 1.09 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. दैट मींस when you proceeding આપું જો તે ડોટ આપું છું, is it? આ કેસ ને આ ડોટ આપ્યા, હાલો આટલો ફાઇન્ડ કરો. આટલું કેમ ફાઇન્ડ કરું બેટા? सर वो टेबल से. नॉर्मल टेबल से आ फाइंड થઈ જાય, is it ना? नॉर्मल टेबल થી આ फाइंड થઈ જાય. શું કરવા? because one of the endpoint is 0 and another endpoint is positive number. So surely normal table will help us to identify this region. Yes or no? Good. હાલ પછી શું કરું બેટા? પછી એને 0.50 માંથી માઈનસ કરી દેવાનું. Yes, absolutely correct. What we are doing, બેસી જા વિધિ. What we are doing વિધિ, હું બેઠી જ હતી સાહેબ, તમને મામા બનાવું છું. What we are supposed to do, look, this particular region, this particular area is 0.5. This particular area is 0.5, जिसके ऊपर मैंने ब्लू बाउंड्री दी है. अब मुझे चाहिए ये येलो वाला है, वो मुझे नहीं मिलेगा नॉर्मल टेबल से. ये नहीं मिल सकता नॉर्मल टेबल से. देखो जिसमें येलो शेडिंग दी है वो नॉर्मल टेबल से नहीं मिलेगा, बट नॉर्मल टेबल से क्या मिलेगा? दिस रीजन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई यूजिंग द नॉर्मल टेबल. तो मैं क्या करूंगा, मैं 0.5 में से ये पूरा एरिया जो है दैट इज 0.5 माने कि 1/2, उसमें से अगर ये सबट्रैक्ट कर दूं तो वी विल बी रेस्ट विद दिस, यही बचेगा. Is it? That is what we are supposed to do. So I'm gonna transform this particular like this, 0.5 minus probability that 0 is less than z is less than 1.09. यही तो हम करेंगे, यही तो सबसे आसान तरीका होगा. Is it? अब 0.5 will be as it is, उसको हम नहीं छुएंगे, रहने दे भाई तू. And now we need to find probability that 0 is less than z is less than 1.09. अब 1.09 की probability देखनी है, उसके लिए नॉर्मल टेबल पे जाते हैं. चलिए जल्दी से. यस, 1.09 देखिए क्या होगा. 1.09 1.0 and 1.09, that is 0.3621. 0.3621 वो मैं ले लूं यहाँ पे. This is 0.3621, is it? Now the subtraction of both is 0.5 minus 0.3621, जो भी आ रहा है, that will be answer. That will be answer. Okay. Honestly, I need an honest reply from all of you. How many of you are getting this thing? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये जो पहली बात की, कितनों को समझ में आई? सच्ची बोलना है, नहीं समझ में आई तो भी मना कर दीजिए, समझ में आई तो हाँ बोलिए. Sure you are getting this? Sure. Perfect. Thank you. Good. ये समझ में आ रहा है तो सब कुछ समझ में आएगा. चलिए, let me erase this particular and then let me show the way you are supposed to represent. This is the same kind of figure which I had just presented, and this is the way जो मैंने अभी किया वही है. वो 0.5 minus 0.3621 और आंसर आएगा 0.1379. How is it?
So we are not worried about that particular figure क्योंकि वो तो बहुत आसानी से जाएगा. But this is the way we can use our normal table. Now, what was the second? What is the second part? Second question says that probability that standard normal variate is less than or equal, probability that standard normal variate Z is less than or equal minus 1.65. यहाँ पे ग्रेटर था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर था, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है. तो चलिए क्या करें विदाउट कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी वो दिक्कत में पड़ने से पहले स्केच बनाना है. सबसे पहले ये बात है, स्केच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक नॉर्मल शेप बना दीजिए, नॉर्मल कर्व बना दीजिए. दिस इज माय नॉर्मल कर्व सपोज, and this because nothing but z equals to 0. थोड़ा गलत हो गया पर चलता है, चलो ठीक है. Now I need to represent z equals to 1.65. पहले तो ये फिक्स कीजिए 1.65, नेगेटिव 1.65 किस पार्ट में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कहाँ पे आएगा? Surely it will be on the right hand side. ये पता है हमको, this point is -3 and this point is +3. So minus 1.65 approximately will be something around here, is it? Something around here, minus 1.65 approximately something around here. बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर दूं थोड़ा, is something around here, yes, approximately in the center, is it? Now, Z is less than what we are looking for. Z जो है वो minus 1.65 से छोटा होना चाहिए. Z must be less than or equal minus 1.65. Less than or equals मानी कि I'm looking for probability of this particular region. Yes or no? अब ये region यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, that goes to infinite, up to infinite. अब भाई ये तो कैसे करेंगे? एक तो हमारे पास जो नॉर्मल टेबल है वो पॉजिटिव पार्ट की वैल्यू दे रहा है, उसमें भी एक जीरो होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी वो नॉर्मल टेबल हमको यूज करना आएगा, वरना तो आएगा ही नहीं. ये तो नेगेटिव पार्ट वाला है, तो क्या करूं मैं? चलो कोई हेल्प करेगा मुझे? यूज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल कर्व. ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने अभी बताई थी, इट इज सिमेट्रिक. तो चलिए अभी भी मैंने बता दी सिमेट्रिक. ओके, माइट बी तुषार इज हियर. Am I dealing with Tushar? I might be wrong, but हम yes अगर रॉन्ग है तो हम उसको गलत कर दें, सही बना देंगे. बल तू बोले वही इम्पोर्टेंट है. सर मेरा यही है कि अगर ये जीरो है, सिमेट्रिक है, तो दोनों साइड सेम ही होगा. वो उस साइड में नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव लग जाएगा. क्या बात एरिया है, तो सेम ही रहेगा ना, दोनों का सिमेट्रिक है, अगर जितना भी लेगा डिस्टेंस. ठीक है तुषार, अब तेरी बात मान के हम इसकी मिरर इमेज इस तरफ बना देते हैं. ठीक है, 1.65 यहाँ पे है. वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर येलो रीजन. अब येलो रीजन का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया तो भाई इसका भी हो जाएगा. देख ये ब्लू वाले का भी. डू यू वांट टू से लाइक दैट? आप इस तरीके से बात करना चाहते हैं? तुषार क्या बोल रहे थे आप? यही बोल रहे थे ना कि सर इसकी मिरर इमेज बना लो आप. ये यस एग्जैक्टली करेक्ट. एरिया सेम रहेगा. दूसरी बात याद रख, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, बिकॉज दिस इज एरिया. वो कम से कम 0 होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा. वो एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होगा. ये तो z की वैल्यू है, तो z तो कुछ भी ले सकता है, प्लस माइनस कोई भी वैल्यू है, पर एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता. प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती. ठीक है, चल. सो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दिस वी आर लुकिंग फॉर दिस, पर उसकी बजाय हमने उसकी मिरर इमेज बनाई. दिस दैट मींस इसको क्या बोल सकते हैं हम आयुष, सॉरी तुषार? This is literally equals to probability that z is greater or equal 1.65. ये दोनों सेम होगा. Agree with me or not? Are you agree with me? Yes or no? All of you agree with me? हाँ सर. ठीक है, good. अब अगर ये करना है तो देखिए यही हो गया ना. क्या फर्क है इसमें? यहाँ पे 1.09 था, यहाँ पे 1.65 है. सर और एक फर्क है, यहाँ पे लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन था और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है. और मैं एक बार और बता दूं, अभी सुनो, हर कोई बंदा सुनो. अगर फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन की बजाय ग्रेटर देन इक्वल होता ना,
ग्रेटर इक्वल होता तो भी आंसर यही आता. It will not make any difference whether we are dealing with strictly greater or greater equal, whether we are dealing with less than or less than equal. Okay, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं फर्क पड़ेगा वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जब लाइंग बिटवीन बताऊंगा ना, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ में, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट सो अब देखिए, ये और ये दोनों सेम ही हो गए. तो नाउ वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, ये फाइंड करना है. चलिए कौन हेल्प करेगा मुझे? अभी बात खत्म नहीं हुई, क्या करेंगे हम? चलिए बताइए. हाँ तुषार, तू ही बता, आगे बढ़. तुषार. हाँ तो बोलना है वही होगा. हाँ तू श्योर नहीं होगा तो मैं करेक्ट करूंगा. चल बोल. जस्ट ने वैसे डाल भी दिया उसमें. 0.5 माइनस 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 0 is less than z is less than 1.65. हम क्या करेंगे भाई? अब ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है ना, कि जिसका एरिया हमको पता है, द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज 0.5. ये पूरा एरिया 0.5 है, पता है ना आपको? ऐसे हमको सिर्फ ये चाहिए, अब सिर्फ इतना ही चाहिए, ब्लू वाला ही चाहिए. तो हम 0.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस रीजन को. और ये रीजन क्या है बेटा? बिटवीन 0 एंड 1.65. सो 0.5 माइनस 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.65. अब मुझे नॉर्मल टेबल से सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, 1.65. किसी के पास नॉर्मल टेबल अगर प्रिंट आउट है अभी पे, जैसे मैंने बोला था कि यू नीड टू हैव द प्रिंट आउट ऑफ नॉर्मल टेबल विथ यू, किसी के पास प्रिंट आउट है तो मुझे जल्दी से बता दो 1.65 की वैल्यू क्या आएगी. आई डोंट नीड टू गो. यस बेटा बता. 0.4505. 4505. This is a value for 1.65 from the normal table. किसी एक बंदे ने बताई है मुझे. एंड उसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, जो भी इसका आंसर आ रहा है, that will be answer. Are we good? Are we clear? देख, दोनों सिचुएशन में मैंने नॉर्मल टेबल का यूज किया. How many of you are getting this? निकिता कक्कड़, बोध निकिताज, मंथन, मानसी, तुषार, बोध तुषार, रिद्धि, पथिक, मानव, अनुज, आदित्य, पथिक, जस. बताओ मुझे कितनों को समझ में आ रहा है ये बात? वेरी गुड. तुषार, आर यू क्लियर? परफेक्टली क्लियर? यस सर. गुड. एक और सर, बात. हाँ बता ना बेटा. ये एग्जाम में मिरर इमेज भी क्रिएट करनी है? यस बेटा, करनी है. देख तुझे कैसे लिखना है बताऊं मैं तुझे. रुक जा, अगर इतना सब कुछ ना करे तो भी चलेगा. लेट मी शो यू द सॉल्यूशन. You can represent like this. होगा अभी या नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन. नहीं बोल सकते अभी, कुछ नहीं बोल सकते ये फर्स्ट रहने दे. दूसरे से स्टार्ट कर. 1 माइनस भी लिख सकते हैं, पर मैं उस कंफ्यूजन में आपको लेके नहीं जाऊंगा. वी आर गुड विद दिस. 0.5 माइनस पॉजिटिव पार्ट ऑफ 0 से 1.65, और वही जो अभी हमने किया. दिस विल बी द आंसर. इतना लिखे आप एग्जाम में तो भी चलेगा, ठीक है. एग्जाम सब्जेक्टिव होगा नहीं होगा वो कुछ अभी डिसाइड नहीं है. बट बी पॉजिटिव, होगा ही. हम कॉलेज में होंगे, हम लोग साथ होंगे. सेंट्रल बोल रहे हैं जैन और पेप के मीट को खुले. सेंटर बोल के 2 दिन में बदल जाता है, पता है ना तुझे. जाने दे वो डिस्कशन. नहीं, ट्विटर में ट्वीट देखा था बीजेपी का एक एमपी की तरफ से, इसलिए बोल. ट्विटर पे मत भरोसा कर भाई. ट्विटर पे काफी सारा बवाल चल रहा है अभी. छोड़ दे, जाने दे. चल थर्ड पे जा रहे हैं. तुषार, नेक्स्ट वन. व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? z is lying between -1 and 1.65. अब देख, this is what we are supposed to find. -1 से 1.96, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. अगर यहाँ पे 0 होता, 0 is less than z is less than 1.96, तो बहुत ही आसानी से मिल जाता उस नॉर्मल टेबल से. पर वहां पे -1 है. अब इसकी अगर मैं स्केच निकालूं तो ये होगी -1, 0, 1.96. मैंने दोनों तरफ एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया है. अब तुझे जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. एक बार देख लो इसे. इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कोई बता सकता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. यू आर हैविंग योर 1 मिनट.
1 मिनट ले लीजिए, सोच लीजिए, फिर बताइए। सर 0 से -1 की प्रोबेबिलिटी, फिर 0 से 1.96 की प्रोबेबिलिटी और दोनों को ऐड कर देनी। हम्म हम्म। देख जस्ट कुछ अलग बोल रहा है। देख तूने बोला बेटा 0 से -1 की प्रोबेबिलिटी। अब 0 से -1 तो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल टेबल हमको नेगेटिव पार्ट में नहीं ले जा रहा है, नॉर्मल टेबल हमको पॉजिटिव ही दे ले जा रहा है। उसकी मिरर इमेज क्रिएट होगी ना, यस, सेम ही होगा। दैट यू आर, देयर यू आर, यस करेक्ट। तो देख सकते हैं हर कोई बच्चा यहाँ पे कि इसके दो पार्ट हो सकते हैं। देखिए एक तो ये जिसके ऊपर मैंने रेड लाइनिंग दी है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट इसका ये हो सकता है, ये वाला, दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, देख इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू probability that -1 is less than z is less than 0 plus probability that 0 is less than z is less than 1.96। अब ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, that we can easily do because एक endpoint 0 है और एक पॉजिटिव है, तो बहुत आसानी से मिलेगा नॉर्मल टेबल से। पर ये नहीं मिलेगा, -1 से 0 माने कि जो रेड अभी मैंने सेटिंग दिया वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए हम यूज करेंगे सिमेट्रिसिटी। जितना रीजन, जितना एरिया -1 से 0 के बीच में होगा, उतना ही एरिया तो 0 से +1 के बीच में होगा। So instead of dealing with this, instead of dealing with -1 is less than z is less than 0, what we will be finding? We'll be finding 0 is less than z is less than 1. ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 0 is less than z is less than 1.96, is it? अब दोनों में देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव है एक नंबर, 0 से पॉजिटिव। So we can use the normal table quite easily. चलिए कौन बताएगा मुझे 0 से 1, 1.00 के लिए वैल्यू क्या है नॉर्मल टेबल में? देखिए कोई एक बंदा, 1.00 एग्जैक्टली 1.00 के वैल्यू क्या है? 0.3413 यस, प्लस 1.96 की वैल्यू बताओ बेटा। 0.3315 एंड एडिशन ऑफ बोथ दिस जो भी आ रहा है 31835276728 0.6728, दिस विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है? हर किसी को समझ में आ रहा है ना? कितनों को समझ में आ रहा है? Drop a message over the chat box quickly. Are you getting this properly, honestly? स्मिथ तू कह रहा है स्मिथ? स्मिथ आप कब आए बेटा? जल्दी आएगा थोड़ा लेक्चर में। गुड। सो चलो अब फोर्थ वाला, लास्ट वाला एक बचा। Let's go for the fourth one. Before that, let me erase this ink from the slide and let me show you the proper way to plot it. देखो ऐसे ही लिखते हैं, बहुत ही छोटा सा ही है सॉल्यूशन। अब चलिए फोर्थ के ऊपर जाते हैं। We need probability that z is lying between two positive numbers 1.25 and 2.75. इसका अगर स्केच निकालूं तो ऐसा होगा, 0.1.25 तक का निकालेगा, फिर 0.2.75 तक निकालेगा, फिर 0.275 माइनस 0 को 1.25 का माइनस कर देगा। तो क्या बात, परफेक्ट, एग्जैक्टली परफेक्ट। और कोई बताएगा मुझे क्या हर एक बच्चा, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है अभी स्क्रीन के ऊपर जिसका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया, हर एक बच्चा इसका सॉल्यूशन विजुअलाइज कर सकता है कि कैसा होना चाहिए? यस। हम निकालेंगे 0 से 2.75, वो नॉर्मल टेबल से मिलेगा। फिर हम निकालेंगे 0 से 1.25, वो भी नॉर्मल टेबल से निकलेगा। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन में निकाल दूं, 0 से 2.75, 0 से 1.25, तो बचेगा क्या? 1.25 से 2.75, is it? That is what we are going to do. Yes, here it is. Perfect. डायग्राम देख के समझ में आ जाता है क्या करना है। डायग्राम से ही, तभी तो मैंने बोला आज बच्चा तुषार, तभी मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन है नॉर्मल का है या स्टैंडर्ड नॉर्मल का,
हर बार हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो स्केच, वो नॉर्मल कर्व रफली ड्रॉ करेंगे। इज इट? डोंट वरी, आपको स्केल लेके नहीं बैठना है कि भाई वो बेल शेप प्रॉपर ही होना चाहिए, वो सिमेट्रिक दिखना ही चाहिए। अगर नहीं भी दिख रहा है तो इट्स ओके, टोटली ओके। सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है तो ठीक है, वो हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं, पर ड्रॉ तो करना है। अगर ड्रॉ नहीं करोगे यू विल नॉट कंफर्टेबल विथ योर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देख, हर बार हमने खुद की बनाई, हर बार ये जो फर्स्ट फॉर्मूला थी ना वो खुद से बना रहे थे हम। तू देख, हरे चारों के चारों क्वेश्चन अगर तू एक बार देख ले, कहीं पे मैं बीच में एडिशन कर रहा हूँ, देख यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बीच में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, वो हमको समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको वो ये जो हमारा नॉर्मल कर्व है वो हमको समझ में आ रहा है, तभी हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 में ऐड करेंगे, 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही तो थे चारों केस। नॉर्मल टेबल से पहले मैंने जो 4 केस लिखे थे ना वो यही थे, पर तभी भी मैंने बताया था कि एट दैट टाइम वी वर डीलिंग विद प्योर थियोरेटिकल वे, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था आपके लिए, पर अभी कंफर्टेबल है। इज इट? गुड, लेट मी मूव फर्दर। This was example first and this example was for standard normal variate. ये किसके लिए था? Standard normal variate के लिए था। Is it ना? Now what we are doing, we are moving for the normal variate. चलिए example 2, examples of normal variate. That means now we will be dealing with x, we will be dealing with x। अब x के लिए क्या करेंगे देखते चलिए। This is the instruction. If x is a normal variate with the mean 30 and standard deviation 5, find the probability that 26 is less than equals to x is less than equals to 40, x is greater than equals to 45. Okay. इससे पहले एक मिनट, एक और बात बतानी थी जो बाकी रह गई, वो क्या था? This was the thing. Probability that z is equals to, कोई एक फिक्स नंबर ले लीजिए, 1.39. Probability that z is equals to 2.57. Probability that z is equals to 0.978 or तो 78. Is it? ये हर एक probability 0 है। Actually ये 0 नहीं है, बहुत छोटी है। It is 0.000000 some number, but we will always consider it as a 0. कोई बताएगा मुझे ये 0 क्यों होगी? क्योंकि जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तब मैं क्या, what I am finding actually, when I'm finding probability that this is, suppose this is z equals to 0, when I'm finding that probability that z equals to exactly 1.39 मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, z की वैल्यू exactly 1.39 है, मानी कि I am just supposed to find the area of this line। सर उसके पास रेंज ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, Yes, तो 0 की टेंस टू जाएगा। yes। उसका मतलब क्या होगा तुषार, कि हम सिर्फ ये लाइन जो है ना उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, और लाइन का एरिया क्या होगा बेटा, मैं नहीं बोल सकता वो 0 है, पर वो बहुत छोटा होगा। इट विल बी 0.00000073 और समथिंग लाइक दैट, बट इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। इज इट? और तू बता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब थोड़ी देर के लिए मान ले कि z is our z represents a height of a student in a class, और मैं बोलूं कि what is the probability that a randomly selected student is having a height 6 feet and 0.5 inches, exactly ये होना चाहिए 6.05, बहुत ही कम होगा, chances are very very less, is it? So that probability will be surely very very less, 0.00000 something. So that is the reason we will always take, अगर कहीं पे equals to है ना तो वो 0 ही रहेगा। That is the only reason कि मैं बोल रहा था कि z is less than 1.35 हो या फिर less than or equals to हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे चैप्टर में, पूरे इस टॉपिक में कहीं पे strictly less than है या less than equals है, strictly greater है या greater equal है, equal से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Now we are clear about that, वो concept clear है सभी को? Yes or no? Let me know, please let me know. Is it clear to all of you कि क्यों वो 0 होगा हर बार अगर फिक्स नंबर के साथ बात कर रहे हैं तो? Perfect, good. So now let's go for the examples related to normal variate. Yes, this is our second example. If x is a normal variate with mean 30 and standard deviation 5, find the probability that we are going to find probability of x. Now we are going to find probability of x. I need to choose a pen with some different color.
Yes, this will be good for you. There it is. We are finding probability that my x, normal variate x, is lying between 26 to 40. अच्छा 26 40 क्या बात कर रहे हो? अभी तो हम बोले थे कि 3 से ज्यादा नहीं होगा. अब यहाँ पे 26 40 कहां से आ गया? ये क्वेश्चन आया किसी के दिमाग में? सर अभी तो आप बोल रहे थे 3 से ज्यादा तो होगा ही नहीं. यहाँ पे 26 आ गया, 40 आ गया. Yes, there you are. Now this is x, this is not z. ये तो x है, हमारा नॉर्मल वेरिएट है. तो पहले तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब अगर ये करना है ना किसी को नॉर्मल टेबल, अगर किसी ने, वो साइंटिस्ट ने अगर नॉर्मल टेबल नहीं बनाया होगा तो क्या होता है पता है तुझे? ये करने के लिए हमको ये इंटीग्रेशन करना पड़ता 26 से 40. वो इंटीग्रेशन क्या था पता है? फंक्शन क्या था? 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ इनटू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा द होल स्क्वायर dx. ये करना पड़ता. अब ये तो भाई मैं नहीं करूंगा सर, जाने दो, मैं नहीं खेल रहा. हमारे पास म्यू है, मीन दिया हुआ है, देखिए मीन इज 30, सो म्यू की वैल्यू है 30. देन आफ्टर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5, दैट मींस के स्मॉल सिग्मा की वैल्यू 5 है. चलो ये 2 है, यहाँ पे मैं रिप्लेस भी कर दूं तो भी ये इतना आसान नहीं होने वाला है, पता है. सो दैट इज द ओनली रीजन कि क्यों हमने x के ऊपर से z इन्वेंट किया, z को क्यों इंट्रोड्यूस किया. अब देखिए उसका रोल क्या आएगा. हाउ दिस थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी. ये z है, वो ये सारी ये बड़ा इंटीग्रेशन कैसे चुटकियों में निपटा देगा, देखते चलिए. हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन? x के लिए मीन है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, और ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने वाले. पर ये इसको कन्वर्ट करेंगे z में. असम्पशन क्या है हमारा? z क्या है? z इज x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. अब ये पूरी जो इनइक्वालिटी है ना, इसको मुझे z में लेके जाना पड़ेगा. दैट मींस कि आई नीड टू फाइंड के जब x की वैल्यू 26 है तब z क्या है, एंड आई आल्सो नीड टू फाइंड व्हेन x इज 40 तब z क्या है. सो लेट्स गो टू आइडेंटिफाई दैट. इफ x इज 26, x की वैल्यू 26 है तब z क्या होगा. चलिए z के लिए यही फॉर्मूला है जो मैंने अभी मेंशन की, यही. x मुझे 26 लेना है, x इज 26, म्यू की वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, म्यू इज 30, सो 26 माइनस 30 डिवाइड बाय सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, सो दैट विल बी 26 माइनस 30, दैट मींस माइनस 4 डिवाइड बाय 5, माइनस 4 डिवाइड बाय 5 की वैल्यू होगी माइनस 0.8. इट इज माइनस 0.8. नाउ सो x की वैल्यू जब 26 है तो z है माइनस 0.8. फिर और एक फाइंड करना है कि जब x 40 है तो z क्या है. if x is 40 तो z फाइंड करता हूं. चलिए z इक्वल्स टू 40 माइनस 30, x की वैल्यू 40, म्यू की वैल्यू 30, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5, दैट मींस 10 डिवाइड बाय 5, 40 माइनस 30 10, 10 डिवाइड बाय 5 माने कि 2. दैट मींस दिस इनइक्वालिटी इज कन्वर्टेड लाइक दिस. 26 माने कि माइनस 0.8 is less than equals to z is less than equals to 2. ये करना है मुझे. अब मैं ये करूं या फिर ये करूं, दोनों सही है. Are you getting this? Are you getting this? Both this will be same. वो हमने कैसे फाइंड किया, ऐसे फाइंड किया. So this was the only additional part in compare of the last example. Last example में मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ से दिया था, ऐसा कुछ आपके पास था, वो हम फाइंड कर रहे थे. अब यहाँ पे x के लिए क्वेश्चन था, उसको हमने z में कन्वर्ट कर दिया. अब ये तो बहुत आसानी से करेंगे हम. गेटिंग दिस? कौन मुझे हेल्प करेगा ये फाइंड करने के लिए, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए? आई विल गो फॉर वन ऑफ द स्केच, वन ऑफ द नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व. ऐसा है जिसका पिक है z, सॉरी इसका पिक है z इक्वल्स टू 0, दिस इज z इक्वल्स टू 0. मैं रिप्रेजेंट करूंगा दोनों, माइनस 0.8 एंड 2. माइनस 0.8 इज समथिंग अराउंड हियर, सपोज दिस इज माइनस 0.8 and 2 is something around here, थोड़ा दूर होना चाहिए. This is 2 and we are looking for this particular region. ये पूरा region की probability चाहिए मुझे, जिसके ऊपर मैंने yellow shading दी है. देखिए this is what we are finding. चलिए कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे? अब तो आना चाहिए आप लोगों को. Unmute yourself and give me the formula. One of you please, one of you. 0.8 तक के लिए निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे. कौन बोला? नहीं समझ में आया मुझे, फिर से बता. हाँ तुषार बोल बेटा. तो फर्स्ट 0 to 0.8 के लिए एक निकालेंगे. देख इसके लिए एक स्टेप एडिशनल देना, ठीक है? पहले माइनस 0.8 से 0 लिख, फिर 0 से 2 लिख, ठीक है?
देख मैं तुझे Yes, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ. -0.8 से z लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन 0 प्लस 0 इज लेस देन z इज लेस देन 2. ठीक है, पहले ऐसा लिखा, फिर ये -0.8 से 0 जो है उसको हम सिमेट्रिसिटी से उसको रिवर्स कर कन्वर्ट देंगे. कर दैट दें विल पॉजिटिव में. yes plus this will be same 0 is less than z is less than equals to 2. अब ये दोनों बहुत आसानी से निकलेगा नॉर्मल टेबल से 0.8 and 2 ऐसे जो भी आ रहा है उन दोनों का एडिशन, बात खत्म. Are we good? Are we good? Sir, it Let is me always know. necessary. Yes, please फिर से एक Sir, बार it is तुषार. always necessary that the range should be between -3 to 3, the z range. हमेशा नहीं, वही निकलेगा, जरूरी थोड़ी है. आपके पास जो क्वेश्चन है वो उसमें वही आएगा, पर अगर उससे बड़ा भी है, अगर उससे बड़ा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होगी. इट इज नॉट लाइक दैट कि z की वैल्यू -3 से 3 के बीच में ही हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, -3 से कम भी हो सकती है, पर अगर वो रीजन है ना तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटी होगी बेटा, बहुत ही छोटी होगी. पर आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज सिचुएशन जो हम लोग देंगे उसमें z की रेंज -3 से 3 के बीच में आएगी. कहीं एक आध क्वेश्चन मैंने रखा भी है जो 3 से आगे जा रहा है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ओ ये तो बहुत ही छोटा होगा, इट इज क्वाइट निग्लेजिबल. इज इट गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सभी को? तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मैं जाऊं. आई एम हियर फॉर यू, एनी ऑफ द डाउट. अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ प्लीज. डाउट है तो बोल दो प्लीज, नहीं है तो बताओ, मैं आगे जाऊं. सेकंड वन, is it? First let me show the solution, proper solution of the this particular. इसका proper solution एक बार दिखा दो, रुक जाओ. नॉर्मल वेट x, मीन दिखा मैंने, स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा. व्हेन x is 26, x जब 26 था तब मैंने z फाइंड किया, जब x 40 था तब मैंने z फाइंड किया. अब क्या हुआ, ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके लिए मैंने स्केच ड्रॉ किया कि z की वैल्यू -0.8 से 2 के बीच में होनी चाहिए. दिस इज द स्केच. इज इट? नाउ the similar stuff which we had already done. The answer will be 0.7653. Are we good? चलिए अब सेकंड कौन करके देगा मुझे? This one. I'm giving you 3 minutes. I need the probability that x is greater equals to 45. Will you try? Will you go for that? Please. x is greater equals 45 के लिए एक बार ट्राई करके देखिए जल्दी से. आई एम गिविंग यू 3 minutes. आई एम जस्ट हियर. Devans is saying 0.5. Yes, Thakur is saying 0.5. Exactly 5? It sounds like that Vidhi is correct. 0.0013. Just Virani is saying 0.5. Just थोड़ा देख बेटा क्या कर रहा है तू, देख स्केच देख अपना पूरा, स्केच ठीक से देख. जब x की वैल्यू 45 है तब z क्या आ रहा है बताओ जल्दी से.
व्हेन x इज 45 z की वैल्यू क्या आ रही है? z की वैल्यू क्या आ रही है? विधि, जश, देवांश? when yes it will be 3, is it na? 45 minus 30 divide by 5, it will be 15 by 5, 3 आएगा। अब तुझे क्या चाहिए? x is greater than 45 मानी कि z is greater than 45, z is greater than 3, sorry, z is greater than 3, z is greater than 3, z is greater than 3। सोच, थोड़ा सोच, z 3 से बड़ा हो 0.5 और minus कोई बोल the रहा है probability of 3 वो वाला निकल जाए। यस, देयर यू आर। तो आंसर क्या आना चाहिए तुषार, तू बता? 0.5 आना चाहिए या 0.0013 आना चाहिए? सर पता नहीं सर, किया नहीं है सर, किया नहीं है अभी तक। कर ले तो फिर क्यों तू क्यों ब्रेक लेके बैठा है? मैं तो टेबल नहीं है सर, टेबल नहीं है। मैं घर पे आके देके जाऊं क्या? एड्रेस बता दे मुझे, यहाँ से पोस्ट सर कर दूं, नहीं, टिकट लगवा दूं। आज प्रिंट निकाल ले। अच्छी बात है, वरना मुझे बोल दे, मैं आके देके जाता हूँ। और क्या करूं भाई? और तो जस्ट एक बार अनम्यूट कर अपने आप को। जस्ट मारो मेंटी। यस सर। કેમ છે? यस सर, મજા સમજાય? સમજાય? હા પાક્કું ડન। તું તો એમ કહેતો તો પેલા કે મને મેથ્સમાં બહુ જાજી નથી ખબર પડતી। ઉભો રે, મારે કોલ આવે છે, ચાલુ રાખ। ઉભો રે અહીંયા જ રહેજે, ચાલુ રાખજે। अरे यार, बोल बेटा बोल। जस्ट પેલા તો હા સર। મેથ્સમાં બહુ જાજી ખબર નહીં પડતી ના સર, મેથ્સમાં મજા આવે એમ કીધું તમને। તો સારું વાળો। Good. શું જવાબ આવ્યો તારો? 0.5 કે 0.0013? नहीं संभळा हूं, तारो अवाज नहीं आवतो बराबर। 13 सर, 0.0013। 0.0013, is it? Let me Yes. show you how it's possible. Mute yourself, beta. I was having a tea break, sorry. Now, yes, when x equals to 45, तो z की वैल्यू 3 आ रही है। That means if we wish to identify x is greater than 45, that means we are looking for z is greater than 3। ये गलत है, ये स्केच गलत है। Let me erase that. 3 वहां पे इतना नजदीक नहीं दिख सकते, वो गलती है। Let me draw the that particular, अरे यार सॉरी, इसको सीधा पकड़ना है। Good. Suppose this is my normal curve, bell-shaped curve, like this. कोई बताएगा मुझे? Suppose this is z equals to 0, तो 3 कहां पे आ सकता है? 3 वहां पे आ सकता है जब वो कर्व है वो x एक्सिस के बहुत ही पास है। This is z equals to 3। अब मुझे क्या चाहिए? This is literally equals to, as we discussed, this is literally equals to z is greater than equals to 3। x 45 से बड़ा है, माने कि z 3 से बड़ा है, 3 या 3 से बड़ा। That means what I am finding, I am looking for the area of this particular region, area of this is z equals to 3, this particular region, that means कि this one, ये चाहिए हमको। अब पता है -3 से 3, यहां से यहां तक, -3 से 3 के बीच में, ये तो आपको पता है। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल टेबल आपके पास ना हो ना तो शायद तो भी हो सकता है। देख, -3 से 3 के बीच में कितना एरिया होता है बेटा? 99.74% डेटा, याद है तुझे? इज इट करेक्ट? -3 से 3 के बीच में 99.74% डेटा है। दिस फिगर, ये फिगर मैंने आपको बोल के रखा है कि आपको याद रखना है। इज इट? It's always, it's true for any of the normal distribution. -3 से 3 के बीच में 99.74% डेटा लाइज करता है। ठीक है, चल अब तो बचा कितना? 100% में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना बचा? 0.26%। अब वो 0.26% दो तरीके, दो पोर्शन में डिवाइड होंगे। उसका आधा इस तरफ होगा, नेगेटिव पार्ट में, और आधा इस तरफ होगा, विच वी आर फाइंडिंग। तो इसका आधा क्या होगा? 0.13%। 0.13% इस तरफ पे है, 0.13% हियर, 0.13% हियर, और बीच में ये जो रीजन है पूरा का पूरा ये वाला, इसमें है 99.74% डेटा। यस और नो? सो वी आर लुकिंग फॉर दिस पोर्शन, तो वो है 0.13%। 0.13% मानी कि 0.0013, वही तो आंसर होना चाहिए। ये कैसे किया हमने? लॉजिकली किया, विदाउट नॉर्मल टेबल किया।
हमारे दिमाग का यूज करके किया, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके किया। जैसे अगर ये क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में डाल दूं जिसकी लिमिट है 60 सेकेंड्स की, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज परफेक्ट। नॉर्मल टेबल भी नहीं चाहिए आपको। अगर आपके पास थोड़ी सी समझ है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो श्योरली यू कैन डू दिस। सो इट इज क्वाइट वैलिड क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू इवन। अब जो आंसर आया 0.0013, अगर वो मैं नॉर्मल टेबल का यूज करके करूं तो भी वही आएगा। देख अब मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल टेबल का यूज कर रहा हूं। रुक जा, लेट मी इरेज दिस पर्टिकुलर इंक। पहले तो ये मेरा स्केच गलत है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है 3 यहाँ पे नहीं हो सकता, बहुत दूर होना चाहिए, यहाँ पे कहीं होना चाहिए, पर अभी मैं उसको करेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसको देयर इज अ काइंड ऑफ टाइप ओवर दैट, सो एडजस्ट विद दैट। 3 यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी 3, बट अभी ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, रफली ड्रॉ किया, ठीक है। चलो, आई एम लुकिंग फॉर z इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 45, माने कि z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूंगा, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए मैं क्या करूंगा, 0 से 3 फाइंड करूंगा, 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। 0 से 3 आप देख लीजिए नॉर्मल टेबल में, इट विल बी 0.4987, वही होगा। उसको 0.5 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो आएगा 0.0013। Am I clear? Am I clear to all of you? How many of you are good with this? Quickly let me know. तुषार गुड, मानव, पथिक, विधि, रिद्धि नहीं बोलती, अजय रिद्धि केम नहीं बोलती, मानसी कक्कड़, बीजी मानसी नहीं बोलती, सॉरी निकिता कक्कड़, बीजी निकिता नहीं बोलती, अनुज, आयुष, देवांश, रिद्धि, यस रिद्धि इज हियर, જાડેજા બાપુ તમે નથી બોલતા, પછી તુષાર બીજો તુષાર નથી બોલતો, સ્મિત ક્યારેક ક્યારેક જ બોલે છે, गिरीश तो एक ही बार નથી બોલ્યો। गिरीश आयु there? गिरीश कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? गिरीश, गिरीश आयु there? So, let's go for the next one. Then, one of the word problem. Now, I don't think so. I'm gonna explain this to all of you. एक बार क्वेश्चन रीड करके देख लेता हूँ। देखो, a manufacturer knows from his experience that his resistance of resistors he produce, कोई एक आदमी है जो रेजिस्टर्स बना रहा है, उसका रेजिस्टेंस है जो वो इज नॉर्मल विथ मीन 100 ohms एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ohm। रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मीन है 100 ohms, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 ohm। सो हमारे पास एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, जिसका मीन हमारे पास है, माने कि म्यू की वैल्यू है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी है हमारे पास, ठीक है। This is the data we are having. Now, what is the question? What percent of, they are not asking for probability, but they are asking for what percent of resistors will have resistance between 98 ohms and 102 ohm? Who the hell is thinking that I can do this? कौन कमबख्त बोलेगा कि ये मैं कर सकता हूं? जल्दी से बता भाई। आ रहा है सर, आ रहा है, क्या आ रहा है गिरीश? समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन कर सकता है ये? अरे बोलो, वरना मैं अभी लेक्चर खत्म करके चला जाऊं। हाँ सर, हाँ ये करो, खत्म कर दो। नॉट लाइक दैट। अरे सभी को सांप सूंघ गया क्या? तो एक अनम्यूट करके बात करो मुझसे। हाँ यशांग સમજાય છે? થઈ જશે આપું 3 મિનિટ। યશાંગ બહુ ડિસ્ટર્બન્સ છે, તારું મ્યુટ કર દે યશાંગ, મ્યુટ કર દે તારું। સાંભળ મને, નહીં ઉભી રે। रिद्धि શાહ, તું હમણાં રિપ્લાય કર્યું તો બેટા અનમ્યુટ કર। યસ સર। લાગે છે તને થઈ જશે? સર કદાચ તો થઈ જશે। હાલ જો હું તને થોડીક હેલ્પ કરું। પહેલા તો તું નક્કી કર કે આમાં x આપેલો છે કે z આપેલો છે। વર્ડ કયો યુઝ કર્યો છે? સ્ટાન્ડર્ડ નોર્મલ યુઝ થયો છે કે નોર્મલ વર્ડ યુઝ થયો છે?
નોર્મલ નોર્મલ એટલે શું બેટા? x. એક્સ નોર્મલ એટલે x, ઇઝ ઇટ? એટલે x આપેલો છે. x નો મીન છે જો તારી પાસે. મીન કેટલો છે? mu is 100. 100 ઓકે, ઓલી ભૂલી જા, એનું યુનિટ ભૂલી જાઓ. હોમ વી આર ગુડ વિથ ધેટ. સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન એટલે સિગ્મા કેટલો આપ્યો છે હા. જોઈએ? 2. 2 અને આપણે શું જોઈએ છે? પ્રોબેબિલિટી ધેટ 98 is less than equals to x is less than equals to 102. 2 તો આગળના જેવો જ ક્વેશ્ચન થયો, સમજાય છે? હા થશે? હા હવે થઈ જશે. ચાલો ટ્રાય કરો, બધા ટ્રાય કરો. આઈ એમ ગિવિંગ યુ 3 minutes ક્વિકલી. all of you just વાહ રે વાહ, વાહ મારો વેન્ટી, વાહ વિદ્ધિ, વાહ. યસ, કરેક્ટ આન્સર વિલ બી 68.27%. પણ તમે વેઇટ કરો, બીજા લોકોને ટ્રાય કરવા દો. વિધિ હવે બેસી જા બેટા, હવે તું તારે સુતા લેક્ચર પર. all of you will give one try to this question, please. all of you, this is very very important. જો આ કેટલું બાયનોમિયલ અને પોઈઝન કરતા ઈઝી થઈ ગયું આ કામ. બાયનોમિયલ પોઈઝનમાં આપણે ક્યાંક ફોર્મ્યુલા યુઝ કરતા હતા, કોઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ નથી કરતા. એક નોર્મલ ટેબલ છે આપણી પાસે, એની મદદથી જ બધું કરીએ છીએ. ઇઝ ઇટ? ટેક યોર ટાઈમ, બધા સ્ટેપ લખો. then I will make you understand about the solution. Take your time. બધાને થઈ જાય એટલે એકવાર અનમ્યુટ કરીને મને કહો. Who's there? ચલો, who will help me? હોપફુલી થઈ ગયું છે બધાને. 3-4 તો આન્સર પણ આપી દો છે. માનવ, દેવાંશ, ગુડ. વિધિ. હવે હું વાત કરીશ નિકિતા કક્કડ. ચાલ નિકિતા આવી જા. Yes, sir. શું આન્સર આવ્યો તારો? 0.6826. આવી ગયો. ચેટ બોક્સમાં જોઈને કે જ. ના સર, આવી ગયો. ઓકે, કઈ રીતે થયું કહેજો મને. પેલા x98 લેશું, ઓકે, એનાથી x98 લે ત્યારે z કેટલો મળ્યો? -1. શું વાત છે, તે તો કરેલું છે ખરેખર. x98 ત્યારે z -1, ગુડ. પછી x 102 એટલે 1. ગુડ. એટલે તો બેટા આવું જ થઈ ગયું જો. એટલે ટૂંકમાં તે આવું જ કર્યું, પ્રોવાઇડ ધેટ -1 is less than z is less than equals to 1. યસ ઓર નો? Yes, sir. અને આ તો સાહેબ આવ્યો ત્યારનું કે છે કે -1 થી 1 તમને ખબર છે કેટલો હોય, -2 થી 2 ઇન્ટરવલ તમને ખબર છે કેટલો હોય, અને -3 થી 3 પણ તમને ખબર છે કેટલો હોય. આ ત્રણ મેં તમને ગોખાવેલા છે. ઇઝ ઇટ? ધીસ ઇઝ 68.26%. હા. સોરી, 68.26% ડેટા હોય આમાં, -1 થી +1 માં. આમાં કેટલું હોય? 95.7 સમથિંગ હોય તો 68 સમથિંગ %. અને અહીંયા કેટલું હોય? 99.74% ડેટા હોય. ઇઝ ઇટ? તો what is this? This is nothing but this is literally equals to this. હવે તું એને નોર્મલ ટેબલ થી કરીશ તો તે એને શું કર્યું છે બેટા? તેને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું હશે. પ્રોવાઇડ ધેટ -1 is less than z is less than 0 પ્લસ 0 is less than z is less than 1. પછી આ -1 થી 0 ને તે રિવર્સ કરી દીધું હશે.
Symmetricity use કરીને 0 is less than z is less than 1 plus the similar step 0 is less than z is less than 1 તો 2 times થઈ ગયું 2 times probability that 0 is less than z is less than 1 તો એ જે પણ આવ્યું હશે એને તું ડબલ કરીશ એટલે એ જ આપશે તને 0.6826 હવે આ પ્રોબેબિલિટી છે આપણે પર્સન્ટેજ દેવાનો હોય તો શું થાય 68.26%. Am I clear? Am I clear? Let me show the whole solution. This is what? Perfect. Very good. તો જો આ ક્વેશ્ચનમાં કદાચ તારી પાસે નોર્મલ ટેબલ ના હોત તો જાતે થઈ જાત ને જો તને ઓલી પ્રોપર્ટી યાદ હોય તો ઇઝ ઇટ ચાલો નેક્સ્ટ ઉપર જઈએ એક્ઝામ્પલ 4 once again a question for you I'm not gonna deal મને સમજાવવાનું નથી અને સમજાવશે કોઈ તમારામાંથી એક અને આખું સોલ્યુશન એ તમારામાંથી કોઈ એક રિપ્રેઝન્ટ કરશે ચાલો I'm giving you 4 minutes once again please 4 minutes I will pick a random person from the audience do it quickly. Wow, good. Oh. Okay, who will explain this? Mano. Mano, can you unmute yourself? Yes, sir. Yes, beta. So, first of all, let us know whether this question is related to normal variate or standard normal variate. Normal variate. Yes. If it is not mentioned over there, then we will consider it as a normal variate. Good. Now, what is the mean? Mean is 16 inches, is it? Yes, sir. As it is written that average seasonal rainfall. Average means mean. Yes, So sir. mean mu की value 16 है. What is the value of standard deviation sigma? 4. 4. Okay. And what we are finding? X is lying in the interval 20 to 24. Is it? Yes, sir. तो जब x की वैल्यू जब x 20 है तो z क्या आएगा 1. if x is 20 then z will be 1 surely here it is on the screen then if x equals to 24 तो z क्या आ रहा है बेटा बताओ 2. तब z आएगा 2 good correct so we are finding what x is lying between 20 to 24 that means z के लिए हम अगर फाइंड करें तो 1 से 2 के बीच में so this will be the sketch Yes, sir. अब कैसे करेंगे बता दे
Probability of 0 to 2 minus probability of 0 to 1. Exactly. Perfect. Perfect. Yes, Josh, you are absolutely correct. 0.1369. This is 13559 है बेटा, या तो मैंने गलती की या तो 59 ही है. Yes. 0.1359. Is it? Good. So hopefully we guys are comfortable with this. Is it now? Hello. All of us are comfortable till this topic, till this example 4. Okay. Then please let me stop the recording now.